ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಆಳ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೋ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಾಧಕರಿಗೋ ಮಾತ್ರವೇ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರಹ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮನ ಅನುಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಅದರ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ. ಈ ಆತ್ಮನ ಅನುಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರಂತಹವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ರಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ತ್ರಿರತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ಊರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥರ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ರತ್ನಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮುನೀಂದ್ರರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮುನೀಂದ್ರರುಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮುನೀಂದ್ರರಿಂದ ಕೇಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯ. या खल्वबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्य असंयुक्तस्य चात्मनोनुभूतिः सशुद्धनयः सात्वनुभूति रात्मैवेत्यात्मैक एव प्रद्योतते. ये पंक्ति अपन ने पूर्व स्वाध्याय में देखी थी कि जो इन 5 विशेषणों से युक्त आत्मा है, अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त. अबद्ध स्पृष्ट को एक साथ रखा है. ऐसी आत्मा की अनुभूति वह शुद्ध न है, और वह अनुभूति आत्मा ही है. इस तरह अकेली आत्मा तीनों में प्रकाशमान है. जिसकी अनुभूति हो रही है वो आत्मा है. अनुभूति भी आत्मा की पर्याय है, और जो अनुभव कर रहा है वो भी आत्मा है. कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों भिन्न होकर भी अभिन्न है. एक ही वस्तु में तीनों है.
प्रश्न ये था, कथम यथोदितस्य आत्मनुभूतिरिति चेत। प्रश्न ये किया किसी ने कि यथोदित आत्मा की अनुभूति कैसे होती है। अब ये यथोदित शब्द जो यहां पर आया है वो प्रवचन सार में भी आया था। प्रवचन सार की टीका में भी 237वीं गाथा की व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचंद्र सूर्य ने, इन्हीं आचार्य ने ये लिखा था कि असंयत जीव के पास यथोदित आत्म तत्व की प्रतीति और यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति ये दोनों होते हैं, लेकिन संयम के बिना मोक्ष की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आत्मानुभूति है ये संयम से भिन्न वस्तु है। ध्यान से समझना इस बात को। जब आचार्य कह रहे हैं कि दो के होते हुए संयम के अभाव में, अर्थात संयम तीसरी वस्तु है ना, दो है उसके पास, असंयत के पास यथोदित आत्म तत्व की प्रतीति और यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति, ये दो है, लेकिन तीसरी क्या वस्तु थी, संयम। उसके अभाव में नास्ति सिद्धि, सिद्धि नहीं है। तो अब ये बात ध्यान में रखनी है कि आत्मानुभूति संयम से भिन्न वस्तु है, ये समझ लेना है। तो फिर वहां पर आचार्य महाराज ने कहा ही था कि आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम और आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम। तो जो आत्म तत्व की प्रतीति थी, यथोदित आत्मा की प्रतीति थी, वो सम्यक दर्शन था, और जो यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति थी वो सम्यक ज्ञान था। अब तीसरी वस्तु क्या हो सकती है, संयम, सम्यक चारित्र। क्योंकि आचार्य महाराज वहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि जब तक ये तीनों नहीं मिलते तब तक मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता, और जब तक मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता तब तक सिद्धि नहीं होती। देखिए एकदम एक एक बात बिल्कुल गणित के समान स्पष्ट है। 2 और 2 4, या 2 और 1 3। एक न हो तो 2 ही रहते हैं, 3 नहीं होते, और 3 जहां होते हैं वहीं मोक्ष मार्ग होता है। तो अब एक प्रश्न आता है कि चलो ठीक है, यहां पर तो समय पावड़ में ये प्रक्रिया बता रहे हैं, एक घटना बतला रहे हैं, वास्तव में कोई विधि नहीं है कि कोई बैठ करके शुरू करे और जैसे खिचड़ी बनाने की विधि है आपने YouTube से वीडियो डाउनलोड करके सीख ली, या फिर और कोई वस्तु सीख ली, तो आप बनाते हो तो वो चीज़ बन जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि 3 प्रकार की काल लब्धि का योग बनने पर ही सम्यक दर्शन होता है, और उसके साथ वो स्थिति बनती है सम्यक ज्ञान की। सम्यक दर्शन जिस क्षण उत्पन्न होता है उसी क्षण वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना देता है। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक दर्शन होने के क्षण में सम्यक ज्ञान होता है। जैसे दीपक प्रज्वलित हुआ और प्रकाश हुआ, प्रकाश दीपक का कार्य है और दीपक प्रकाश का कारण है। तो क्या दीपक पहले जलता है और प्रकाश बाद में होता है? नहीं, दीपक जिस समय जलता है प्रकाश उसी समय होता है, उसके बाद में नहीं होता, तत्काल होता है। बस वही स्थिति सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दूसरा उदाहरण दिया है। दीपक और प्रकाश का उदाहरण आचार्य अमृतचंद्र सूर्य ने पुरुषार्थ सिद्धिपाय में दिया है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि बादल के हटते ही प्रकाश और गर्माहट दोनों एक साथ आते हैं।
धूप भी आती है और घाम भी आता है। तो बस वैसे ही मिथ्यात्व के हटने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ आते हैं। तो दोनों एक साथ होते हुए भी संयम के बिना सिद्धि नहीं है, क्योंकि संयम के अभाव में मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये बात आचार्य कुंद स्वामी की गाथा 237 प्रवचन सार ग्रंथ में जो गाथा आई है, उसकी आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद सूर्य ने स्पष्ट लिखा। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वैसे ही ज्ञान तो सम्यक हो ही गया, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय जो चली गई है वो चारित्र मोहिनी थी। तो चारित्र मोहिनी के जाने से कोई ना कोई चारित्र तो होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जगत में जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो चाहे कर्म भूमि के हों, चाहे भोग भूमि के हों, चाहे देवलोक के हों, चाहे नरक के हों, अगर वो सम्यक दृष्टि हैं, जितने सम्यक दृष्टि, वो तो सम्यक दृष्टि हैं, तो अगर वो सम्यक दृष्टि हैं तो उनके पास तीनों होने चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इस विषय में आचार्यों का क्या अभिमत है, इस पर अपन एक दृष्टिपात करते हैं कि क्या सारे सम्यक दृष्टि रत्नत्रय धारी होते हैं। क्योंकि अभी आचार्य अमृतचंद सूर्य ने तो कह दिया कि दो होने से रत्नत्रय नहीं होता, और नहीं होता तो मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। इसका अर्थ ये है कि दो हो सकते हैं और तीसरे के बिना वो दो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाते। ये बात आचार्य अमृतचंद सूर्य ने स्वीकार कर ली है। अब सवाल ये है कि अन्य ग्रंथों में आचार्यों का क्या कहना है। तो एक दृष्टि अपन डाल रहे हैं। ये ऐसी जानकारी की बात है कि पुण्य योग से हमारे सामने ऐसी जिज्ञासा आई जिसके समाधान में हमारा पुण्य था कि हम इतने सारे शास्त्रों का आलोड़न करके वो बात आपके समक्ष रख रहे हैं। और सुनने वाले का था या नहीं, वो तो वो लाभ उठाएगा तब पता चलेगा, है ना। अब यहां देखिए, तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 37 नंबर का सूत्र है, तीसरे अध्याय का। तत्वार्थ सूत्र का जो तीसरा अध्याय है, उसके 37वें सूत्र में क्या लिखा है? भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत, ऐरावत और विदेह, ये तीन कर्म भूमियां हैं। पर विदेह क्षेत्र में सुमेरु पर्वत के उत्तर और दक्षिण दिशा में, और पांचों मेरुओं में अपन देखें तो उत्तर और दक्षिण दिशा में देवकुरु और उत्तर कुरु, उत्तर दिशा में उत्तर कुरु, दक्षिण में देवकुरु, ऐसी भूमियां होती हैं। तो आचार्य कहते हैं देव कुरुत्तर कुरुभ्य अन्यत्र कर्म भूमियां, उन भूमियों से अन्यत्र विदेह का जो विभाग है वहां कर्म भूमि है, वो भूमियां उत्तम भोग भूमियां हैं। तो देवकुरु और उत्तर कुरु कर्म भूमि नहीं है, ये स्पष्ट हुआ। फिर कर्म भूमियां कौन सी हैं? तो भरत क्षेत्र पूरी कर्म भूमि है, ऐरावत क्षेत्र पूरी कर्म भूमि है, विदेह क्षेत्र, इन दो स्थानों को छोड़ करके पूरी कर्म भूमि है। ठीक है। प्रश्न ये है कि कर्म भूमि का अर्थ क्या होता है? कर्म भूमि की व्यवस्था क्या होती है तो सबको पता है। धर्मस्थल में पंचवैभव में देखा ही है कि जहां षट कर्म होते हैं, जहां आजीविका करके, पुरुषार्थ करके मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं, वो कर्म भूमि है। लेकिन मात्र उतना नहीं है। आचार्य क्या कहते हैं उसको सुनते हैं।
अथवा का पुनः कर्म भूमिया इत्यतः कर्म भूमिया कौन सी हैं? तो ये बता दिया सूत्र में, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। और विदेह क्षेत्र में जो भोग भूमि वाला भाग है उसको छोड़ देना, बाकी पूरा भाग कर्म भूमि का है। अब अथवा मोक्ष मार्ग तृतय प्रकृत, मोक्ष मार्ग जो है उसमें 3 हिस्से हैं, उसका प्रकरण है यहाँ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में। मोक्ष मार्ग में 3 विभाग कौन से हैं? जगन्य मोक्ष मार्ग, उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग और मध्यम मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग में 3 जो भाग है वो, उसमें एक भाग है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चारित्र है। स किं सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति, क्या ये रत्नत्रय सब क्षेत्रों में होता है? प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि अभी चर्चा ये चल रही थी कि जितने सम्यक दृष्टि हैं उन सब के पास आनंदानुबंधी के अभाव में कोई ना कोई चारित्र होगा, तो फिर वे सारे चारित्र के धारी हैं और रत्नत्रय उनके पास, सबके पास है। पर यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में दर्शन ज्ञान चारित्र 3 आते हैं, लेकिन स किं सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति, क्या वह मोक्ष मार्ग सब क्षेत्रों में हो सकता है? न इत्याह, क्या उत्तर दिया? नहीं, मोक्ष मार्ग सर्वत्र नहीं होता। कर्म भूमिष्वेव, कर्म भूमियों में ही मोक्ष मार्ग होता है। कितनी अद्भुत बात है और कितनी गंभीर बात है। कुत एतत्, ये कैसे? तो आचार्य उत्तर देते हैं, एक एक शब्द ध्यान से सुनने योग्य है। भोग भूमिषु ही यद्यपि मनुष्याणाम ज्ञान दर्शने स्तः चारित्रम तो नास्ति। भोग भूमियों में, वो कह रहे हैं, प्रश्न क्या किया? ये कैसे? कर्म भूमियों में ही मोक्ष मार्ग है, ये कैसे? प्रश्न किया। आचार्य उत्तर देते हैं, ही, क्योंकि भोग भूमियों में यद्यपि मनुष्यों के पास ज्ञान और दर्शन है, तो किंतु चारित्रम नास्ति, चारित्र नहीं है। क्यों नहीं है? अविरत भोग परिणामित्वात्, निरंतर भोग रूप परिणाम वाले होते हैं वो भोग भूमिज। तो जिन जीवों के परिणाम निरंतर भोग रूप होते हैं उनके पास चारित्र नहीं होता। यद्येवं, यदि ऐसी बात है, कास्ताः कर्म भूमियां, तो फिर वे कर्म भूमियां कौन सी हैं? उनका समाधान सूत्र में दे दिया। तो इससे स्पष्ट हुआ कि संपूर्ण जगत में, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक में केवल ये 3 भूमियां हैं जहां मनुष्यों के पास चारित्र है। तिर्यंचों के पास भी है, वहां पर देश चारित्र है। प्रश्न आएगा कि क्या तिर्यंचों के पास और कोई स्थान भी है जहां पर देश चारित्र हो सकता है? तो उसका उत्तर है कि है। स्वयंभू रमण द्वीप अंतिम द्वीप है। उस द्वीप के मध्य में एक स्वयं प्रभ नाम का पर्वत है, जैसे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत है, वैसे स्वयं भू रमण द्वीप के मध्य में स्वयं प्रभ नगेंद्र पर्वत है। उस पर्वत के भीतर तक तो भोग भूमि है मेरु की तरफ, लेकिन उस पर्वत के बाहर की तरफ कर्म भूमि प्रतिभाग है। वहां मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के उस पार नहीं जाते, पर वहां के जो तिर्यंच हैं वो तिर्यंच कर्म भूमिज है। तो उनके पास भी
देश चारित्र हो सकता है। धवला की छठी पुस्तक में लिखा है कि वहां के तिर्यंश सम्यक्त के साथ और देश चारित्र के साथ 16वीं स्वर्ग भूमि तक जा सकते हैं, और असंयम और मिथ्यात्व के साथ वो सप्तम पृथ्वी तक भी जा सकते हैं। वहां की जो कुछ मछलियां हैं, राघव मत्स्य और तंडुल मत्स्य, शालिसिक्त मत्स्य बोलते हैं उसको, चावल के दाने के बराबर होते हैं। ये 2 प्रकार की मछलियां सप्तम पृथ्वी तक जा सकती है। इस तरह ये एक जानकारी की बात थी कि रत्नत्रय सर्वत्र नहीं होता, किंतु केवल कर्मभूमि में होता है, और कर्मभूमियों में भी उन्हीं के पास होता है जिनके पास संयम होता है, जो अपन ने आचार्य अमृतचंद सूरी की वाणी में अपन पढ़ चुके हैं प्रवचन सार में। संयम के बिना चारित्र नहीं, और चारित्र के बिना रत्नत्रय नहीं है। ये एक महत्व की बात थी। अब ये अनुभूति कैसे होती है, ये प्रश्न यथावत है, पर चूंकि वो अनुभूति, इसमें जो कलश आने वाला है इस प्रकरण के अंत में 13वां क्रमांक जो कलश का आएगा, उसमें आचार्य एक बड़ी सुंदर बात कहेंगे। वो ये बताएंगे कि आत्मानुभूति क्या वस्तु है, कैसी है, और इस आत्मानुभूति का जो परिणाम है, इसके माध्यम से क्या हो सकता है, उसका वर्णन करेंगे। तो वहां पर चारित्र की झलक मिलेगी अपने को। तो आज एक महत्व की बात यहां पर स्पष्ट हुई कि चारित्र जो होता है वो कहां से प्रारंभ होता है और कहां जाकर के पूर्ण होता है। तो उसका समाधान है कि जो चारित्र है, जैसे इसी ग्रंथ में, तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में, एक वाक्य और पढ़ करके बात को पूरी करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना है कि चारित्र तो मुनियों के ही पास होता है, मुनि अवस्था से नीचे चारित्र नहीं होता, ऐसा भी अभिमत है। लेकिन अपन आचार्य के वचन देखते हैं कि आचार्य क्या कहते हैं। तो आचार्यों के वचनों से अंतिम समाधान वही होता है, क्योंकि जज वही है, फाइनल जजमेंट उन्हीं का। ये एक बड़ी सुंदर बात हमें श्रवण बेलगोल में देखने मिली। त्यागी नगर में 9 दिनों तक वाचना चली, और वाचना का जो ये माइक्रोफोन था हमारे सामने रहता था हमेशा। ऐसा आचार्यों का आदेश था कि आप शास्त्र सामने रख करके आप सारी बात रखो, फिर बाद में निर्णय जो है वो आचार्य देंगे अंत में। और जब हम कोई वहाँ बहुत उहापोह होते थे, बहुत प्रश्नोत्तर होते थे, और फिर जब शास्त्र के कोई वचन हम उनके सामने रखते थे, तो फिर वहाँ जितने साधु थे, जितने आचार्य थे, वो ऐसे हाथ जोड़ करके उसको स्वीकार करते थे कि जब आगम की वाणी बता रहे हैं तो फिर बस वो अंतिम निर्णय हो गया। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर भी अपन देखते हैं, और ये बहुत महान गुण है। किसी भी जीव में आगम को स्वीकार कर लेना एक महान गुण है, क्योंकि आगम को स्वीकार करना ही सम्यक्त की पहचान है। बाकी ठीक है, कितनी भी कमियां हो सकती है, लेकिन जो साधु 100 कमियां होने के बाद भी आगम की बात को सच्चा मानते हैं, उनको अपन मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। देखिए, ये तीसरा वार्तिक है। पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का, उसका तीसरा वार्तिक। पहले वार्तिक में उन्होंने सम्यक दर्शन का विवरण किया, दूसरे में सम्यक ज्ञान का, और तीसरे में सम्यक चारित्र का वर्णन करते हुए आचार्य अकलंक देव प्रमाणम अकलंकस्य
महाकवि धनंजय ने कहा है कि अकलंक देव का प्रमाण अकाट्य होता है। तो क्या कह रहे हैं? संसार कारण विनिवृत्तिम प्रत्यागूर्णस्य, संसार के कारणों से छूटने के प्रति जो पुरुषार्थ में तत्पर हुए हैं, ऐसे ज्ञानवतः, सम्यक दृष्टि भी है जो और ज्ञानवान भी है, ऐसे जीव का बाह्याभ्यंतर क्रिया विशेषोपरम सम्यक चारित्रम, बाह्य और अभ्यंतर की कुछ खास क्रियाओं से विराम ले लेने का नाम चारित्र है। संसार पंचविध, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परिवर्तन भेदा। संसार के 5 भेद हैं, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। तस्य कारण कर्म, संसार का कारण क्या है? कर्म। अष्टविधम, 8 प्रकार का कर्म है वो। तस्य विशेषेण आत्यंतिकी निवृत्ति, संसार कारण विनिवृत्ति, और उन 8 कर्मों से छूटने का नाम संसार कारण विनिवृत्ति है, अर्थात मोक्ष। ताम प्रत्यागूर्णस्य उद्यतस्य, उस मोक्ष के प्रति जो आगूर्ण है, उद्यत है, पुरुषार्थी है, ऐसे ज्ञानवतः इति प्रशंसायाम मतु, जो ज्ञानवान है, वहां पर ज्ञानवान का अर्थ होता है ज्ञान से संपन्न। वरना कोई ऐसा लगा ले कि भाई ज्ञान तो निगोदिया जीव के पास भी है, वो वाला ज्ञान नहीं है यहाँ पर। यहाँ सम्यक ज्ञान से संपन्न किसी जीव की चर्चा है। सद्विविध, वो 2 प्रकार का होता है। बाह्य आभ्यंतरश्चेति, जो मोक्ष में बाधक जो भी हुए हैं, वो कुछ अंदर भी है और कुछ बाहर भी है। दोनों का त्याग करेंगे तो चारित्र होगा। तो अब देखिए कितना सरल तरीके से आचार्य महाराज समझा रहे हैं। बाह्य वाचिक कायिक। बाह्य क्या है? वचनात्मक है, शरीरात्मक है बाह्य। तो ऐसे वचनों का त्याग और ऐसी काय चेष्टाओं का त्याग बाह्य त्याग कहलाता है, जो मोक्ष मार्ग में अपेक्षित है। आभ्यंतरो मानस, आभ्यंतर त्याग जो है वो मानसिक त्याग है। तो इन दोनों के त्याग से सम्यक चारित्रम इत्युच्यते, सम्यक चारित्र ऐसा कहा जाता है। अब इसके बाद एक पंक्ति में बात पूरी हो रही है। स पुनः परमोत्कृष्टो भवति वीतरागेषु। परमोत्कृष्ट चारित्र किनके पास होता है? जो राग का क्षय कर चुके हैं अथवा उपशम कर चुके हैं, ऐसे वीतराग मुनिराजों के पास होता है, अर्थात 10वें गुणस्थान के ऊपर होता है। यथाख्यात चारित्र संज्ञकः। अब किसी के मन में शंका उठ भी सकती है कि हमने कैसे कह दिया 10वें गुणस्थान के ऊपर। तो उसकी पुष्टि आचार्य महाराज के इस वचन से हो रही है कि वो सबसे उत्कृष्ट चारित्र यथाख्यात नाम का चारित्र है। तो अब स्पष्ट हो गया यथाख्यात चारित्र कहाँ होता है? 10वें तक नहीं होता, उसके ऊपर ही होता है। अब आरातीयेषु, अन्य जो उस चारित्र से जुड़े हुए हैं उनमें संयतादिषु, संयत जो होते हैं 5वें गुणस्थान वाले, उनको आदि लेकर, जो अणुव्रती होते हैं उनको आदि लेकर का मतलब वहां से प्रारंभ करके सूक्ष्म सांप्रायिकांतेषु, 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म सांप्रायिक पर्यंत जीवों में प्रकर्षा प्रकर्ष योगी भवति, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, इस प्रकार के योग को प्राप्त होता है। तो जगन्य चारित्र कहाँ हुआ? 5वें गुणस्थान में हुआ कि नहीं? अणुव्रतों के बिना हुआ क्या? अणुव्रतों के बिना नहीं हुआ, क्योंकि पापों को छोड़े बिना चारित्र नहीं हो सकता, और पापों को छोड़ना 4थे गुणस्थान में नहीं हो सकता।
इसलिए आचार्य महाराज ने ये बात स्पष्ट कर दी कि चारित्र जो होता है वो पंचम से लेकर 14वें तक होता है। 10वें तक तो ठीक है, जघन्य से मध्यम तक का, और उत्कृष्ट जो है पहले ही बतला चुके हैं, उत्कृष्ट जो है 10वें के ऊपर का है, तो उसको भी अपन शामिल करेंगे ना चारित्र में। जघन्य और मध्यम को कर लिया, अब उत्कृष्ट को भी शामिल करो, तो चारित्र का पूरा क्षेत्र अपने सामने आता है। उसको अध्वान कहते हैं। चारित्र मार्ग कहां से कहां तक के है? तो 5वें से 14वें तक के। तो इससे स्पष्ट हुआ कि नहीं, ये चारित्र कहाँ होगा? 5वें स्तर के ऊपर, कर्म भूमि में। किस क्षेत्र में होगा? कर्म भूमि में, क्योंकि कर्म भूमि में पापों का त्याग हो सकता है, उसके बाहर न नरकों में हो सकता है, न देवों में हो सकता है, न भोग भूमियों में हो सकता है। इसलिए रत्नत्रय का क्षेत्र केवल कर्म भूमि में, और वो रत्नत्रय आज उपलब्ध है। जो अंगीकार कर ले उसके लिए, सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर्म भूमि के सारे जीव रत्नत्रय के धारी होते हैं। कौन होते हैं? जो त्याग करते हैं वही होते हैं। बाह्य त्याग क्या है? कायिक और वाचनिक, और अंतरंग त्याग क्या है? मन का। मानसिक। जैनम जयतु शास्त्र। ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮೊದಲು, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಭೂಮಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟುವುದು ಭೋಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ 4ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 10ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ತನಕ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವಸ್ತು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ 4ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದಿಂದ 14ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ. ಆದರೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುನಿಶ್ರೀಗಳು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ತನಕವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂತರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಅದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು. ಈ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂತರ ಎರಡನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವೂ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಮೋಕ್ಷದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ನಮಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುನಿಶ್ರೀಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮುನಿಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಚ್ಛಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಇಚ್ಛಾಮಿ.